Hi guys, welcome back to another video of this particular course, and in this video we will be talking about string questions. In the previous video we saw about the string class in C++ and we saw some of the functions of the C++ class string, such as we saw about subster, then we saw about pushback, and then we see the popback function, then we see the find function, then we saw about concatenation, various functions we have done. So now in this particular video we will wind up the string topic and we will try to do as much questions as we can from medium level to advanced level questions. Okay, so in this video particular I will be using recursion also. I will combine string and recursion because in a lot of string questions recursion is very helpful. As I told you earlier also that recursion is used in various concepts. So in this video also we will be talking about recursion and string as well. The questions will be dependent upon the recursion. Many will not be dependent, but most of it will be dependent. So if you haven't seen, make sure that you watch the particular video. Okay, so without wasting any time, let's dive into that what questions we will do today. Okay. So the first question which we will see today is of anagram. The second question will be of reverse the string. The third question will be of vowel count, and the fourth question will be of subsequences. So these four questions we will be reviewing on. Like the subsequences means to generate all the subsequences of a given string. As I told you earlier in the videos that substring and subsequence has a difference between them. दोनों सेम नहीं होते, दोनों में डिफरेंस होता है. ठीक है, ये चीज़ हमको दिमाग में रखनी होती है. अब before proceeding any further, let's talk about Launchpad section of Newton School. This course was only possible because of Newton School. Newton School is a platform from where you can learn anything for no cost until you are placed. You are being taught by advanced teachers and you get a assured package of 5 lakh to 40 lakh etc. They have a tie-up among 300 plus companies and you get a placement, assured placement with the companies such as Unacademy, Snapdeal and all that. And the Launchpad section is an initiative of Newton School to make India developer powerhouse of the world. Under Launchpad section there is no cost and it is absolutely free for you to learn anything you want to learn. This course is also available under the Launchpad section if you go to the Newton School website. एंड अगर ये कोर्स आप वहाँ से करते हो तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलता है, प्लस जो इस क्वेश्चन के एक्सरसाइजेज जो मतलब इस कोर्स के एक्सरसाइजेज होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल है, प्लस साथ में वहाँ पे डाउट सपोर्ट भी आपको मिल जाती है. सो मेक श्योर दैट यू चेक आउट द लॉन्चपैड सेक्शन एंड इफ यू वांट टू डू मोर कोर्सेज ओवर दैट सो यू कैन. Now let's dive into the first question of our video, which is anagram. The question states that given two strings S and T, check that if they are anagrams of each other or not. बेसिकली एनाग्राम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ CAT कैट और TAC टैक या ATC ACT एक्ट, ये सारे एनाग्राम्स हैं. एनाग्राम का मतलब क्या है कि लेंथ सेम होनी चाहिए और जो वर्ड यूज हो रहे हैं वो भी सेम होने चाहिए. जैसे इसके अंदर यूज हो रहा है ACD, इसके अंदर भी TAC, मतलब कि तीनों के वर्ड के अंदर ये तीनों वर्ड यूज हो रहे हैं ACT. ठीक है, ये होता है एनाग्राम. जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे वर्ड DOP डोप और मैं लिखता हूँ यहाँ पे OPED ओपेड, ये दोनों एनाग्राम है. बट अगर मैं लिखता हूँ OPD तो ये एनाग्राम नहीं है क्योंकि लेंथ भी सेम नहीं है और एक कैरेक्टर मिस हो रहा है. तो बेसिकली क्या होना चाहिए, दोनों कैरेक्टर सेम होने चाहिए प्लस साथ में उन दोनों का जो लेंथ है वो भी सेम होनी चाहिए. ठीक है, चेक करते हैं कि जैसे एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन में जैसे ये देखिए, एक मिनट में कर रहे
ठीक है, अब जैसे मान लो हमको गिवन है यही वाले लेते हैं एक्ट और टैक, ये दोनों हमको चेक करना है, तो हम कैसे चेक करेंगे? आई वुड रिकमेंड यू टू पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड ट्राई टू फिगर आउट द सोल्यूशन. ओके, आई एम होपिंग दैट यू हैव पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फिगर आउट द सोल्यूशन ऑन योर ओन. अब इसको करने के ना वेरियस तरीके होते हैं, ठीक है ना. पहला, अगर तुम चेक लगा दो अपने प्रोग्राम के अंदर कि इफ s डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू t डॉट साइज, अगर दोनों का साइज ही नहीं बराबर है तो रिटर्न कर दो फॉल्स. सी आउट फॉल्स एंड डन. बेसिकली बहुत सा आसान सा तरीका है, तुमने साथ ही में फॉल्स रिटर्न कर दिया अगर तुमको पता लगा कि साइज ही सेम नहीं है. पहला चेक तो ये हो गया. दूसरा चेक क्या होगा? दूसरा चेक तुमको चेक करना है कि दोनों के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम होने चाहिए. ठीक है, अभी मैंने हैश मैप का कंसेप्ट एक्चुअली नहीं बताया, हैश मैप का, बट वो इसके अंदर काफी यूजफुल होता है हैश मैप का कंसेप्ट. अच्छा, अगर हम सोचें तो इसको करने का एक और तरीका है. हैश मैप तो एक तरीका है ही है, लेकिन हमने अभी हैश मैप नहीं पढ़ा हुआ है, हम हैश मैप के अलावा भी और कुछ पढ़ सकते हैं. क्या कर सकते हैं? हम लोग इसके साइज का एरे ले लेते हैं, इसके साइज का एरे ले लेते हैं, ये वाला. ठीक है, हम लोग एज्यूम करते थे ए का इंडेक्स 1 है, सॉरी 0 है, सी का इंडेक्स है 1, टी का इंडेक्स है 2. ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं. एज्यूम कर लिया. अब यहाँ पे हर जगह 1 भर दो, मतलब कि ए मेरे पास 1 बार ही आ गया, सी भी 1 बार ही आ गया, टी भी मेरे पास 1 बार ही आ चुका है. बेसिकली फ्रीक्वेंसी एरे की तरह काम कर रहा है ये. बेसिकली ये जो है फ्रीक्वेंसी एरे की तरह काम कर रहा है, फ्रीक्वेंसी एरे की तरह काम कर रहा है. और ये हमारे पास 0 1 2 ये हमारे पास इंडेक्सेस है. अब इसको पहले इसके ऊपर ट्रैवर्स किया, अब इसके ऊपर ट्रैवर्स करो टी और जहां जहां उसका आ रहा है वहां उसकी 1 कर दो, मतलब +1 कर दो. जैसे टी की +1 होगी, फिर ए आया, ए की +1 होगी, और सी आया, सी की +1 होगी. अगर इस एरे में सबकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाती है तो ट्रू आंसर है, अगर नहीं होता तो फॉल्स आंसर है. ये प्रोग्राम बिल्कुल चलेगा तुम्हारा, अगर तुम ऐसे इसको इंप्लीमेंट करोगे तो बिल्कुल चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा. बट हल्का सा इशू ये आएगा कि मान लो अभी तो चलो स्ट्रिंग का साइज छोटा है, अभी तो स्ट्रिंग का साइज स्मॉल है, तुमने इसको ऐसे जूम करके एक एरे क्रिएट कर लिया. पर अगर स्ट्रिंग का साइज बड़ा हो तो तुम क्या करोगे? अगर स्ट्रिंग का साइज बड़ा हो या स्ट्रिंग में रिपीटिव एलिमेंट्स हो, ए बी बी ए और बी ए ऐसे जो है तुम्हारे पास स्ट्रिंग आ जाए, एक आंसर तो तुम क्रॉस आंसर ये कह सकते हो यार मेरे पास इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स ही होते हैं तो मैं 26 साइज का एरे लेके बना सकता हूँ, है ना. बट किस पे चेक लगाओगे? अगर मान लो इसी में तुम्हारे इतने एलिमेंट्स हो जाए और इसी पे अगर ऐसे हो जाए तो इसका तुमको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम दूसरा मेथड देखते हैं. जो दूसरा मेथड है ना वो ये कहता है कि सॉर्ट कर लो दोनों एरे को, दोनों स्ट्रिंग को सॉर्ट कर लो. जैसे मान लो हमारे पास स्ट्रिंग थी ए बी बी ए और दूसरी स्ट्रिंग थी बी ए, ये दोनों स्ट्रिंग्स थी. अब इसको सॉर्ट कर लो. सॉर्टिंग बेसिकली क्या करेगा, तुम सॉर्टिंग का फंक्शन यूज कर सकते हो, सॉर्ट. ये तुमको मैंने एरेस के बारे में बताया था ना, एरेस के ऊपर भी कि ऐसा होता है, एस डॉट बिगिन और एस डॉट एंड. ठीक है, तुमने बेसिकली इसको सॉर्ट कर दिया. अब जब सॉर्टिंग के बाद ये वाली स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, ए बी बी, और ये वाली स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, ए बी बी. अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, दो लूप चला लो बेसिकली फॉर अगर दोनों का साइज सेम है तो इंट i इज इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन s डॉट साइज एंड i प्लस प्लस. ठीक है, और हम यहाँ पे कर सकते हैं इफ s ऑफ i इज इक्वल टू t ऑफ i. अगर ये कंडीशन नहीं मीट करती है बाय द वे तो रिटर्न कर दो फॉल्स को, एल्स रिटर्न कर दो ट्रू को. बेसिकली ये बहुत ही आसान सा तरीका है. लेकिन इसके अंदर एक चीज समझने वाली ये है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है बिग O ऑफ n log n, वेयर n इज द साइज ऑफ द एरे. ये सॉर्टिंग के लिए यूज होगा. तीसरा तरीका है, अगर उसमें अंदर एक हम एजम्पशन कर लें कि हमारे पास वर्ड हमेशा स्मॉल ही होंगे तो हम एक एरे कंसिडर कर सकते हैं 256 साइज का, वहां पे हम लोग कर सकते हैं. वो भी एक ठीक तरीका है. बट इसमें जो मोस्ट ऑप्टिमल तरीका मेरे को लगता है ना वो ये लगता है कि अगर हम हैश मैप यूज कर लें, वो भी अनऑर्डर्ड हैश मैप, अनऑर्डर्ड मैप. अब देखो अनऑर्डर्ड मैप में इंसर्टिंग का टाइम भी बिग O ऑफ 1 लगेगा और निकालने में भी बिग O ऑफ 1 लगेगा. अगर हम इतना डीप नहीं सोच रहे तो ऊपर से अगर देंगे तो बिग O ऑफ 1 में अप्रोक्सीमेटली हम कर सकते हैं. बस एक चीज होगी कि बिग O ऑफ n ट्रेवर्सल लगेगा इसमें हमको पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने के लिए.
तो हम मैप के बारे में आगे बात करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि हम लोग सॉर्टिंग को यूज कर सकते हैं और दूसरा कैरेक्टर एरे जो है, और सॉरी फ्रीक्वेंसी एरे हम यूज कर सकते हैं। हम मैप के बारे में आगे बात कर रहे होंगे वीडियोस में कि मैप क्या होता है, कैसे काम कर रहा होता है। बेसिकली मैं अभी थोड़ा सा हमको हिंट दूं, हिंट मैप क्या होता है। हाँ, मैप होता है ये, जैसे मान लो यहाँ पे कीज होती हैं और की वैल्यू होती है, की वैल्यू पेयर होता है बेसिकली। कि मान लो मेरे पास एप्पल की कॉस्ट है 20 रुपीज, बनाना की कॉस्ट है 10 रुपीज, इस तरीके से काम करता है मैप। मैप में सर्च करने के लिए लॉग इन कम्प्लेक्सिटी लगती है, लेकिन तुम अनऑर्डर्ड अगर यूज कर लो, तुम सॉर्टिंग नहीं करोगे तो वो बिग O ऑफ 1 में भी हो जाता है, क्योंकि तुम एक बेसिकली लुकअप कर रहे हो, है ना, तुम एक लुकअप कर रहे हो। तो एक तो चलो ये चीज होगी, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन हम देखेंगे आज, वो हम देखेंगे रिवर्स अ स्ट्रिंग का। रिवर्स अ स्ट्रिंग क्वेश्चन दे रखा है तुमको, गिवन अ स्ट्रिंग प्रिंट इट्स रिवर्सल। ये क्वेश्चन करने को भी बहुत सारे तरीके हैं। तो इसमें इनबिल्ट फंक्शन भी होता है रिवर्स का, इनबिल्ट फंक्शन भी होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम लोग स्टैक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने स्टैक्स नहीं पढ़ा, हम स्टैक पढ़ेंगे आगे जाके। तीसरा फंक्शन क्या होता है, इसको हम किसी और एरे के अंदर स्टोर कर लें, रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स करके रिवर्स लूप लगा दें, ठीक है ना। कैसे लगाओगे, फॉर एंड i is equal to n minus 1 where n is the size of the array, i is greater than equal to 0 and i minus minus and c out i कर दो, c out s of i, ठीक है। या स्टोर कर लो इन सम वेक्टर और प्रिंट करा दो, इसमें भी गॉफ एंड स्पेस लगेगी। काफी सारे तरीके हैं, बट मैं एम्फोसाइज करूंगा कि तुम इसको रिकर्शन से करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को तुम लोग रिकर्शन से क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्योंकि इसके थ्रू अगर तुम रिकर्शन में अप्लाई कर दो, तुम्हारा रिकर्शन का कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और एक क्वेश्चन आसानी से तुम कर भी पाओगे, ठीक है। एक बार बैक जाते हैं, सोचते हैं रिकर्शन में क्या होता था। 3 स्टेप, पहला स्टेप बेस केस, दूसरा स्टेप हाइपोथेसिस, तीसरा स्टेप इंडक्शन, यही होता था। इसके अंदर सोचो पहले कि फंक्शन डिफाइन क्या करोगे तुम। सबसे पहले ये सोचो दिमाग में, तुम फंक्शन को डिफाइन कैसे कर रहे हो। तुम्हारा फंक्शन क्या कर रहा होगा, तुम्हारा फंक्शन जो है वो प्रिंट कर रहा होगा रिवर्स में। तुम्हारा ही फेथ आ गया, तुम जो है रिवर्स में प्रिंट कर देगा, तुम्हारा फंक्शन ये कर देगा तुम्हारे लिए, ठीक है, बिल्कुल। अब तुमने क्या करना है, यू वॉन्ट टू थिंक ऑफ बेस केस। बेस केस तो यार सिंपल सा था, इसमें अंदर क्या कि इफ एफ डॉट साइज, ये मैं जरा यहाँ पे ना एक मिनट मैं एक लाइन खींच लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना। जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है। देखो रिकर्शन से जो हम कर रहे हैं ना, रिकर्शन से जो हम कर रहे होंगे, तो पहले तो देखो इसका बेस केस क्या हो जाएगा। बेस केस तो यही हो जाएगा कि इफ s डॉट साइज इज इक्वल टू 0 तो रिटर्न मार जाए, ठीक है। दूसरा, मेरे फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, मेरे फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि इट विल प्रिंट द रिवर्सल, इट विल प्रिंट द रिवर्सल। तीसरी चीज के अंदर ये है कि जो मेरा हाइपोथेसिस क्या होगा, हाइपोथेसिस मेरा डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इट विल प्रिंट द स्मॉलर आउटपुट और द रेस्ट वर्क। और फोर्थ, माय वर्क, मेरा काम क्या होगा। देखो इसको चीज को अंडरस्टैंड करना, अगर मेरे पास हेलो है और मैं करूं कि यार तू एक काम कर ना भाई, तो एक काम कर, तू इसको रिवर्स करके ले आ। जब तू इसको रिवर्स करके ले आया ना, तो बाद में मैं ये प्रिंट कर दूंगा। सोच पा रहे हो, वो कह रहा है कि तुमने क्या किया, तुमने कहा कि सब पहले जो है, मान लो कि ये एरे है, मान लो कि ये स्ट्रिंग है तुम्हारी, तुमने रिकर्शन से कहा कि हे रिकर्शन डू अ थिंग, इसको तुम प्रिंट करके ले आओ, देन मैं इसको कर लूंगा काम। जैसे देखो फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये हेलो है तुम्हारा, तुमने रिकर्शन को बोला रिकर्शन ये सारा तुम हैंडल कर लो, ये सारा तुम हैंडल कर लो, इसको तुम प्रिंट करके ले आओ उल्टा, तो करके ले आएगा प्रिंट इसको OLLA। अब बाद में तुमने कहा मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, या तुम उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा कैसे कर सकते हो, तुम कह रहे हो इसको पहले कर दो और बाद में ये कर लूंगा। तुम BSH भी कर सकते हो, तुम BHS भी कर सकते हो, तुम दोनों केस कर सकते हो। हम इसके अंदर बेसिकली ये वाला मेथड फॉलो कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे बेसिकली, एक मिनट में कोई रब करने दो। हाँ, ये वीडियो हम कह रहे होंगे जैसे हमारे पास हेलो वर्ल्ड है, हेलो मान लो वर्ड है, हम कह रहे होंगे काम करो
तुम इसको रिवर्स करके ले आओ, इसको रिवर्स करके ले आओ, ये आ गया OLLE, बाद में हम इसको रख देंगे यहाँ पे, ये हम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज याद ये याद है ना कि 1 2 3 4 0 से स्टार्ट होता है फॉर n इंडेक्सेस आर फ्रॉम 0 to n-1, तो वही हम लोग यूज कर रहे होंगे। और एक और चीज हम लोग यूज कर रहे होंगे, सबस्टर फंक्शन, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, सबस्टर वाला फंक्शन, वो हम लोग इसमें यूज कर रहे होंगे। तो फंक्शन लिखते हैं, सॉरी जस्ट अ मिनट, या void print स्ट्रिंग SRE इनपुट में, स्ट्रिंग SRE इनपुट में, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, इफ s डॉट साइज इक्वल टू 0 तो रिटर्न कर जाओ, रिटर्न कर जाओ, एल्स प्रिंट को कॉल कर दो फॉर s डॉट सबस्टर 1। s डॉट सबस्टर 1 का मतलब क्या है कि तुम 1 से आगे सारा काम करके ले आओ, ये 1 से आगे सारा काम करके ले आओ, देन प्रिंट s ऑफ 0, मतलब जो लास्ट में तुम्हारा s ऑफ 0 है उसको प्रिंट कर देगी, इससे तुम्हारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो आई होप तुमको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में लगी होंगी। अब आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली एक क्वेश्चन देख लेंगे वॉवल काउंट का और सब स्ट्रिंग का, वॉवल काउंट का और सब स्ट्रिंग का, सब सीक्वेंसेस का, ठीक है। टिल देन अगर तुमको कोई भी डाउट हो तो कमेंट आउट कर देना, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।